Hello viewers, a very good afternoon and welcome to a live telecast of the closing function of the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association being held at the Assam Assembly Hall at Guwahati, Assam today. His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, will deliver the valedictory address at the closing function. Here we can see a contingent of the Assam Police getting ready to receive His Excellency Professor Jagdish Mukhi, the Governor of Assam. His Excellency has arrived at the premises of the Assam Assembly. A guard of honor being offered by the Assam Police contingent to His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam. Governor Mukhi will shortly address Jagdish Mukhi, Governor of Assam, who will address the valedictory speech at the concluding function of the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association, which started yesterday at the Assam Assembly Hall in Guwahati. As many as 76 delegates coming from 22 states from all parts of the country have been deliberating on the theme of strengthening legislative oversight to help optimize development outcome for aspirational sections of the society. The delegates deliberated on themes like mainstreaming youth-centric policies and harnessing youth energy for the national development and common good of the nation. We can see the governor making his way to the Assembly Hall, accompanied by Lok Sabha Speaker Mr. Om Birla, Assam Legislative Speaker, Assembly Speaker Mr. Biswajit Daimari. Delegates expectantly waiting for the arrival of the distinguished guest at the hall of the Assam Legislative Assembly at Dispur, Guwahati, Assam. The two-day 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association was inaugurated by the Lok Sabha Speaker Mr. Om Birla yesterday at the Assam Assembly Legislative Hall. Mr. Om Birla, in his speech at the inaugural function yesterday,
said that greater participation of the youth in the democratic process will make democracy more accountable and the administration more transparent. Mr. Birla said the youth played a major role in the freedom struggle and also in bringing changes to the country during the last 7.5 decades since India's independence. He said, as the country celebrates its 75th year of independence, there is a need to increase the participation of youth in the democratic and parliamentary process. He said, the youth can offer solutions to the challenges being faced by the country. The Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla, said the legislatures will have to play a role in encouraging the youth. If more and more youth get involved in the process and become stakeholders, then democracy will get more accountable and the administration will be more transparent. He said the energies and skills of the youth will strengthen democracy. Mr. Om Birla also highlighted the efficacy of initiatives like the Youth Parliament and schemes like Know Your Constitution in making people aware of the constitutional values. The Lok Sabha Speaker also said that the primary responsibility of the legislature is to fulfill the hopes and aspirations of the people. Therefore, it is important that laws should be made after thorough debate and discussions and by incorporating the needs of the aspirational sections of the society. The Lok Sabha Speaker also said that democratic institutions from the Panchayat to the Parliament should keep the youth and women at the center of policy making. He also called upon the lawmakers to voice the concerns of the aspirational sections of the society. Referring to India's strong and vibrant democracy, Mr. Om Birla said Indian democracy acts as a guide to other democratic countries in the world. He said that the Commonwealth Parliamentary Association is working for strengthening democratic institutions in the world and is bringing positive changes in the lives of the citizens. Also present at the inaugural function of the India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association yesterday was the acting chairperson of the Executive Committee of the Commonwealth Parliamentary Association, Mr. Jan Little Granger, who in his address to the parliamentarians coming from all over the country said the purpose of the Commonwealth Parliamentary Association is to connect, develop, promote and support the parliamentarians and their staff to identify benchmarks of good governance and implementation of the enduring values of the Commonwealth. The Chief Minister of Assam, Mr. Himanta Biswa Sharma, in his address to the parliamentarians coming from all over the country, said that it's a proud occasion for the Commonwealth Parliamentary Assam State Branch and the Assam Legislative Assembly to get an opportunity to host the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association. He said, the Commonwealth Parliamentary Association provides a platform for in-depth deliberation on a wide range of issues that are of paramount importance for furthering our rich democratic tradition. By working together and learning from each other, we can constantly improve our democratic practice and system. Also in the inaugural function was present the Speaker of the Assam Legislative Assembly, Mr. Bishwadit Doimari, Leader of the Assam Legislative Assembly Opposition, Mr. Debabrata Shaikia, and Rajya Sabha Deputy Chairman, Mr. Harivansh.
We can see delegates coming from different parts of the country and Assam State Assembly awaiting the arrival of the distinguished guest for the closing function of the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association, which started with a 2-day program from yesterday. The conference is being held at a time when Assam and its people are preparing to celebrate the Bohag Bihu, the biggest spring festival of the Assamese people, along with the Assamese New Year. Cultural programs and visits to neighboring tea gardens, the textile town of Swalkusi, the Pobitora Wildlife Sanctuary are on the agenda of the delegates to visit and to know, and this will give an opportunity to the delegates coming from various parts of the country and also from abroad to know better the history and culture of Assam. Assam is the biggest producer of tea in the world. Assam tea is internationally known. Tea gardens were started by British planters in the early part of the 19th century after Assam came under British rule after the Treaty of Yandabo, which was signed between the British and the Burmese. The discovery of oil led to the establishment of the first oil refinery in Asia, the Dispur oil refinery in 1901. In fact, the discovery of tea and oil led to the biggest investment of about rupees 10 million rupees by the Dardan colonial British rulers in Assam, which transformed the socio-economic scenario of Assam. And it opened up a window to the Indian mainland and to the world at large. It also ushered in democratic practices of the British Parliament and other liberal democratic values enshrined in the British Constitution. The Assam Legislative Assembly was established on April 7, 1937 in erstwhile Shillong, the capital of the composite state of Assam. Later on, states like Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Mizoram were carved out of the composite state of Assam in 1963 and in 1972. With the establishment of the state of Meghalaya in 1972, the capital of Assam shifted to Dispur in Guwahati, along with the Assam Assembly, which started functioning from Dispur, Guwahati in Assam. The Assam Assembly today has a strength of 126 members representing different parts of the state. We can see delegates coming from different parts of the country, consisting of speakers, deputy speakers, leader of opposition, members of the Assam State Assembly, members of Parliament from Assam, some of the executive members of the Commonwealth Parliamentary Association who attended the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association, waiting for the arrival of His Excellency,
Professor Jagdish Mukhi, the Governor of Assam, will deliver the valedictory address at the concluding function of the conference. The conference will also be addressed by Mr. Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Assam Legislative Assembly, Mr. Biswajit Duimari, while the vote of thanks will be offered by Dr. Numal Momin, Deputy Speaker of the Assam Legislative Assembly. In a short while from now, the closing function of the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association will begin. Delegates coming from 22 states of the country, consisting of speakers, deputy speakers, leaders of opposition, are in attendance, along with representatives from the Executive Committee of the Commonwealth Parliamentary Association, and also members of the Assam State Assembly and members of Parliament from Assam. His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, was presented a guard of honor on his arrival by a contingent of the Assam Police and the Assam Police Band. Here we can see Member of Parliament, Mr. Bhuvaneshwar Kalita, a senior member of the Rajya Sabha, coming to attend the closing function of the two-day conference. Here we can see Speaker of the Assam Assembly escorting His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, and Mr. Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, to the Assam Assembly Hall, where the concluding function of the 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association is going to begin in a short while from now. Also present on the dais is Mr. Jan Little Granger, acting chairperson of the Commonwealth Executive Committee of the Commonwealth Parliamentary. Good afternoon, Namaskar. Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla, Honorable Ian Little Granger, Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Duimari, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin, Excellencies, distinguished members of Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, distinguished presiding officers and other delegates of Commonwealth Parliamentary Association India Region, Honorable Ministers, Members of Parliament, members of Assam Legislative Assembly, ladies and gentlemen. On behalf of Assam Legislative Assembly and Commonwealth Parliamentary Association Assam State Branch and Commonwealth Parliamentary Association India Region, I extend a warm welcome to you all to the valedictory ceremony of the 8th India Region Commonwealth Parliamentary Association Conference.
I would now request Shri Biswajit Doimari, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly and President, Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch, to kindly address the August gathering. सम्मानीय His Excellency Governor of Assam, हमारी सबकी आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, सम्मानीय हमारे सभी के आदरणीय लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, हमारे सभी की आदरणीय राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंशी, हमारी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक्टिंग चेयरपर्सन श्री गंगेर जी, असम विधानसभा की डिप्टी स्पीकर नौमल मुमीन जी और विभिन्न विधानसभाओं का मेरे आदरणीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन तथा उप चेयरमैन, हमारे संसद के सदस्य, हमारे विधायकगण और असम के यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभा के यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और सम्मानीय यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिगण, आज यहाँ हमारा अंतिम दिन है। यद्यपि मैं यहाँ पर वेलकम एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन विदाई की समय करीब आ रहा है, तो धीरे धीरे बुरा लग रहा है। सबसे पहले मैं सभी को आज भी स्वागत करता हूँ हमारे असम में, असम विधानसभा में, और हमें बहुत आशीर्वाद मिलने का मौका मिला कि आप सभी का शरण यहाँ पर पड़े। देश के सारे विधानसभा से सारे गुणी ज्ञानी व्यक्तिगण इस कॉन्फ्रेंस के नाम पे यहाँ पर पधारे हैं, आप लोगों का शरण पड़े है और इस शरण से असम तथा असम विधानसभा हमें बहुत ही उपकार मिले। आज सारे असम में यही चर्चा हो रही है कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सभा हो रहा है, जहाँ पर देश विदेश का प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और देश के सारे सेक्टर से भी यहाँ पर सारे विधानसभा के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। सबका भी उम्मीद है ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जरिए जो भी यहाँ पर बातचीत किया जाएगा, ये देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए भविष्य निर्णय करेगा। अच्छे से अच्छे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसके जरिए संसदीय व्यवस्था को शक्तिशाली करने में सक्षम होंगे और यह संसदीय जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के जरिए देश को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठा पाएंगे, ये सब उम्मीद रखे हुए हैं और डेफिनेटली वास्तव में ये होंगे, ये मेरा विश्वास है। हम जितना हो सके कोशिश किया कि ताकि दूर दूर से आकर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के नाम में तकलीफ उठाना ना पड़े, एक अच्छे एनवायरनमेंट में
अच्छे वातावरण में यहाँ पर बात कर सके और जिस वातावरण में हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम ताकि भविष्य के लिए अच्छे कोई ऐसा कुछ कार्य प्रणाली लेने के लिए बात कर सके और यूनिफॉर्मली सारे राज्यों और सारे कॉमनवेल्थ देश हम एक दूसरे के बारे में जानने के बाद, जानकारी लेने के बाद कुछ सीखने को मिले और एक दूसरे का अच्छे चीजों को हम एडॉप्ट कर सके और हम एक साथ आगे की तरफ हम कदम उठा सके। यही हमारा एक चिंता था और इसलिए मैं आशा रखता हूं कि आप लोग यहाँ आकर जिस तरह आप लोग आने से पहले सोच रहा था, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होते हुए भी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग रहकर एक अच्छा चिंता करने की, चिंता जताने की एक वातावरण मिले और इस बीच में भी कुछ बहुत कमी रह जाता है। ऐसे सब सारे राज्यों के जब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग इकट्ठा होते हैं तो सब कर नहीं सकता है, उसी में हम भी बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाता है। तो कहीं अगर गैप हो गया, इसके लिए मैं आसाम के होकर, आसाम विधानसभा के होकर क्षमा चाहता हूं। हम सिर्फ ये आशा रखते हैं कि आज की तरह हम भविष्य में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन और भारतीय क्षेत्रीय जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, हमें देश की संसदीय व्यवस्था को इसी तरह एक साथ बात करते हुए हम ताकि अच्छे से अच्छे कर सके और कुछ सुधारने का जरूरत है तो सबका भी मौत लेके हम सुधार कर इसको बना कर ले सके और भविष्य के लिए हम शक्तिशाली कर सके, ये मेरा एक आशा है। तो आज हमारी असम के गवर्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप से यहाँ पर है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ और धन्यवाद जताता हूँ कि हमारी आमंत्रण के हिसाब से आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर आया है कि हमको कुछ उनके जो वैल्यूएबल विचार है उसको हमको उनके भाषण के जरिए देंगे, वो एड्रेस करेंगे। ये भी हमारे लिए सौभाग्य है, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ओम बिरला जी को, जिन्होंने हमको इसके लिए असम विधानसभा को सक्षम समझा, फिट समझा कि हम ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर सकता है। ये एक विश्वास लेना हमारे लिए बहुत बड़ा स्वीकृति है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सीपीए का जो ये था एक्सको का मीटिंग, हमारे ग्रेंगियर साहब है और ऑनरेबल एक्टिंग चेयरपर्सन ग्रेंगियर जी इज विद अस एंड दैट्स आल्सो our luck. We are lucky that this was the first EXCO meeting in India, and we got the chance to host this EXCO meeting here in Assam. And for that, I thank again to Om Birlaji, our honorable speaker. He has given this chance to Assam Legislative Assembly. मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राज्यसभा की उपसभापति जी हैं हरिवंशी, आगे पार्लियामेंट में मिले थे, तो कभी कभी हम लोगों के बीच में थोड़ा सा होता था कि ज़्यादा बोलना चाहते रुकते थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत हमको संसद के समय में भी अभी भी बहुत परामर्श दिए, उनके साथ बहुत सीखने को मिले। विद्वान व्यक्ति है हमारे संसद के बीच में, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इतना दिन आप यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आके बैठे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।
और सारे हमारे स्पीकर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस में आके इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने में आप लोगों ने सहायता की, मदद की। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे मीटिंगें हो जाता है, विभिन्न बिजी शेड्यूल के कारण इकट्ठा हो नहीं सकता है, लेकिन असम में इस बार ऑलमोस्ट सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पहुंचे हैं। तो इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि ये हमारे असम के लिए गौरव का बात है कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब यहाँ आए और असम में ये जो हुए हैं इसको सक्सेसफुल के सफलता की। तो और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये सब के साथ आप सभी को फिर से हमारे आसाम की लोगों की तरफ से और उसकी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी आज रह नहीं चुका है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने सारे जो व्यवस्था की इसमें मदद की, और वो नहीं मदद नहीं करता तो शायद हम भी इतना कुछ नहीं कर पाता असम विधानसभा। तो वो हर समय हमारे साथ खड़े रहा, सब समय उपदेश देता रहा, और अब तक भी वो बोल रहा है कि खत्म होने वाला है लेकिन लास्ट तक अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। तो एवरी मिनट्स वो हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज उनके जो इमेज है देश विदेश के साथ जो अच्छा संपर्क बनाए रखे हैं, और इसके कारण आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ये सभा इतना आसानी से, इतना विश्वास से कि असम में हम लोग कर सके उनके मदद से। और ये हर समय उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी खबर ले रहा है कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। इतना तो प्राइम मिनिस्टर जी अपने ऑफिस के जरिए हमारी इस सारे कॉन्फ्रेंस को निरीक्षण कर रहा है, और जिसके कारण हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का एस्कॉम मीटिंग है इसको भी हम लोग सफलतापूर्वक यहाँ पर समाप्त कर सका। तो सभी को फिर से मेरा प्रणाम। जय हिंद। Thank you, sir. I would now request Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh to kindly address the distinguished gathering. महामहिम राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, CPA के एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक्टिंग चेयरपर्सन मिस्टर यान लीडेन क्रेजर, असम विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमल मोमिन जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, प्रदेशों के विधानमंडलों के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा CPA रीजन का, इंडिया रीजन का, जिन्होंने इस बहुत टॉपिकल और फ्यूचरिस्टिक दो प्रसंगों पर यहां चर्चा का हम सबको अवसर दिया। विश्वास है कि युवा केंद्रित नीतियों को मुख्यधारा में लाने और युवा क्षमता ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में योगदान सुनिश्चित करने में यह आपसी विमर्श संवाद जो 2 दिनों हम लोगों ने किया सहायक होगा। बहुत प्रसन्नता की बात है जो कल सूचना मिली कि आजादी के 75 वर्षों बाद यह पहली बार कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। डॉक्टर लोहिया इस रीजन को उर्वशियम कहा करते थे, यानी इसका इतना समृद्ध सांस्कृतिक अतीत है, उसे जोड़कर वह यह नाम देते थे। गुवाहाटी को हम सब अपने प्राचीन पुराने साहित्य में प्राग ज्योतिषपुर के रूप में भी पढ़ते हैं, यानी पूर्व का प्रकाश। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 दिनों जो चर्चा हुई हम सबकी, उससे जो प्रकाश लेकर हम सब लौटेंगे, अपने अपने जगह जाकर अच्छी तरह हम उसे काम करेंगे। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रति पूरे देश में एक नए अप्रोच, नए विजन की शुरुआत हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी राज्यसभा के हाल के सत्र में नॉर्थ ईस्ट पर 6 घंटे तक बहुत सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रीय जन विकास कल्याण के लिए युवा ऊर्जा का प्रयोग, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। दरअसल कई जगह ये चीजें हो रही हैं हमारे देश में ही। मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने चर्चा की उससे जो समेकित हमारा प्रयास होगा उससे एक नई ताकत मिलेगी। युवाओं को हमें अब लीगल ड्राफ्टिंग यानी क्वालिटी और परफेक्ट ड्राफ्टिंग में
इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। डिजिटल एज के लिए जो कानून कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और हमारे यहाँ लीगल ड्राफ्टिंग के लिए एक्सपर्ट्स चाहे केंद्र में हो और राज्यों में कम मिलते हैं, वो क्षमता आज युवाओं के पास है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही स्क्रूटनी ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके तहत कानून बनते हैं, वो समय से सदन के पटल पर रखे जाए। स्क्रूटनी का काम विधायिका का है। संसद से पारित कुछ कानूनों को के आधार पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, उनकी मॉनिटरिंग स्क्रूटनी की जिम्मेदारी विधानसभाओं की भी है। क्या हम यंग लीगल प्रोफेशनल से क्वालिटी बेहतर करने में मदद ले सकते हैं क्या, यह हमें सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए इससे लीडरशिप तैयार होगी, क्योंकि यही 25 वर्ष बाद लोग देश संभालेंगे। आज दुनिया के दूसरे देशों में प्रयोग हो रहा है। यूएस कांग्रेस में इथिक्स कमेटी में सीनियर लॉयर डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, यानी पार्लियामेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का सहयोग ले रही है। अपनी यहां भी यंग लीडरशिप को जोड़ना चाहिए और अपने देश में भी कुछ हो रहा है जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इसको अगर हम त्वरित रूप से गति दें मिलकर तो एक बड़ा काम हो सकता है। जैसे हमारे दोनों सदनों के रिसर्च विंग और संसद टीवी में फेलोशिप देने और इंटर्नशिप का काम यूथ को चला, बहुत ही मशहूर और बेहतर कार्यक्रम है। तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा जो ग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हुआ है, हर जिले में कैसे यंग एक्सपर्ट्स क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करें और ग्राउंड लेवल पर बताएं लोगों को, यह बहुत अच्छा प्रयास है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स अर्बन लीडर्स फेलोशिप, ये यंग लीडर्स को तैयार करेगा कि फ्यूचर में जो चीजें हो रही हैं खासतौर से अर्बनाइजेशन में, उसमें हम कैसे लोग यंग एक्सपर्ट चाहिए। हरियाणा में हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप, बड़ा काम हो रहा है। और मेघालय में जहां से हम सीख सकते हैं, 22 में मेघालय सरकार द्वारा नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के साथ एक फेलोशिप कार्यक्रम की मंजूरी मिली है। इसका मकसद है पॉलिसी रिसर्च और लीगल ट्रेनिंग अधिकारियों को दिया जाए, यानी विधायिका के कामकाज से समाज परिचित हो। इसके लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में और जहां से हमने अपनी डेमोक्रेसी का मॉडल लिया है, वहां जो प्रयोग हो रहे हैं वो सब हम सब मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की किस तरह कानून बनते हैं, किस तरह बहस होती है, क्या नियम है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के कामकाज के बारे में, बजट और विधेयक के बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट विभिन्न आयु वर्ग के शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इस डिजिटल मीडिया के दौर में ये नॉलेज शेयर करना संभव है। दूसरा, दो तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह चर्चा की। एक चर्चा हमेशा कमियों पर होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और क्रिटिकल एनालिसिस ही हमें आगे ले जाते हैं, उनसे राह मिलती है कि कहां हमें क्या करना है। पर इस मुल्क में जो युवाओं ने पिछले दिनों किया है उसके बारे में हमें जरूर बताना चाहिए लोगों को, और हम अगर मिलकर के इसका प्रयास करते हैं तो उसको एक नई ताकत मिली, क्रिएटिव एनर्जी को नई फोर्स मिलेगी। जैसे अरुणाचल के हमारे विधानसभा अध्यक्ष पसांग दोरजी ने कहा, यूथ एनर्जी इज इक्वल टू न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें क्रिएटिविटी की अनंत संभावनाएं हैं, दूसरी संभावनाएं भी हैं, पर कोरोना काल में उस क्रिएटिविटी का कैसे हम लोगों ने हमारे यूथ से परिचय दिया है। कम से कम हम मिलकर इस स्वर को अगर आवाज दें तो दुनिया जानेगी। वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की पुस्तक भी मैं पढ़ रहा था, जो अभी अभी आई है, मेड इन लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन को संस्थापक हैं, सीईओ हैं। इस देश की क्या हालत थी, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे हमारे यहाँ, आरटी-पीसीआर किट की क्या बहुत कम संख्या, पीपीई किट की बहुत संख्या, N95 मास्क की बहुत संख्या, रोजाना करोड़ों की जरूरत पड़ गई। उसमें किस तरह से हमारे मुल्क के लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। हम पढ़े तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जिन नौकरशाहों के बारे में हम कहते हैं कैसे सरकार ने बंद के दौरान एक एक जगह से 3-3 हजार ट्रकें रोज निकलने लगी। ये हमारे यूथ फोर्स का चमत्कार है। उसी तरह एक युवा आईएएस की किताब अभी आई है, डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, ये तरुण पिथोरे का, कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों ने काम किया उसमें। और तीसरी पुस्तक है प्रियम गांधी की, नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड। आसाम का एक उदाहरण उसमें है, जो आईएएस अधिकारी अरुण पिथोरे ने अपने समकालीन युवा आईएएस अधिकारियों से हर राज्य में बात की, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, और लिखा कि कैसे वहां इस दौरान चीजों को लोगों ने किया। आसाम के ग्वालपाड़ा की घटना उसमें उल्लेख है। यंग डीसी कोई वर्णाली थी, इंजीनियर, उन्हें बाहर से लोग आ रहे थे, कार्य सौंपा गया कि आपको इतनी बड़ी संख्या में शौचालय खड़ा करना, जो एक तरह से असंभव काम था करने को। जब सुबह में वो डीसी गई, यंग एनर्जेटिक डीसी, तो जो वहां काम करने वाले यंग फोर्स जो इंजीनियर वगैरह थे, देखा कि इतना बड़ा काम हुआ है, तो पूछा कि कैसे संभव हुआ रात में।
उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वो क्रिएटिविटी की स्पिरिट है, वो हम बढ़ाएं कैसे। उन्होंने कहा हम लचित की धरती के हैं जिन्होंने सगे चाचा का सिर देश के काम में चूक के लिए अलग किया था। ये एनर्जी है हमारे देश की। मैं दूसरी घटना आपको बता रहा हूं, सपन कुमार पत्र लेख, बिल्कुल आदिवासी, झारखंड के बिल्कुल नितांत सबसे पिछड़े, जो गांधी जी कहते थे सबसे पिछड़े इलाके का, संथाल आदिवासी दुमका का टीचर। जब कोरोना हो गया तो स्कूल उसने बंद नहीं किया अपना, घर के दीवारों को उसने ब्लैक बोर्ड बनाया और न कहीं जाकर सरकार या किसी से कोई सहयोग मांगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। उस व्यक्ति का रिकॉग्निशन जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में की तो लंदन, जापान, न्यूयॉर्क, चाइना के चैनलों पर वो चला। हम क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हम लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं। तिलक मेहता मुंबई के, रितेश अग्रवाल, अन अकेडमी, गौरव मुंजाल और रोमन सैनी जिन्होंने एम्स में भी पढ़ाई की, IAS छोड़कर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो हमारे यहाँ ऐसी अनंत चीजें हैं जो हो रही हैं। इन यूथ्स की क्रिएटिविटी को, इनकी उपलब्धियों को हम मिल करके अगर रिकॉग्निशन देना शुरू करें तो हम सब लोगों की अद्भुत इस रूप में यह चीज योगदान हो सकता है। विवेकानंद जी जब US से लौटे तो उन्होंने मद्रास में एक वाक्य कहा यूथ्स के बीच, कठोपनिषद का एक सूत्र, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त वरा निबोध, यानी उठो जागो और अभिष्ट को प्राप्त करो। ये काम हमारे देश में हुआ है। और मैं इन तीनों किताबों का उल्लेख किया, अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे वर्णन है जो हतप्रभ करने वाले। देश ने क्या हासिल किया, बाहर की कंपनियां कैसे दवाओं में देश को अपनी शर्तों पर बंधक बनाना चाहती थी, लेकिन हमारे युवा वैज्ञानिकों ने क्या ताकत हमको दी है। और भारत वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, लेकिन आज दुनिया का मेडिकल हब बन रहा है। इस क्राइसिस से निकलकर ये युवाओं से संभव हुआ है। हम दुनिया को बताएं, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी क्रांति युवाओं ने इस संकट में ला दिया। ये हमारी उपलब्धि है युवाओं की। इसलिए हम अगर मिलकर के इन चुनौतियों के बीच, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जिन युवाओं ने, जिन युवा वैज्ञानिकों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन हमारे अधिकारियों ने सरकार से मिलकर ये काम किया है, उनको कम से कम हम देश के सामने लाए, बताएं तो एक नई ऊर्जा उन सारे युवाओं में पैदा होगी अगर हम पॉजिटिविटी को उत्साहित करते हैं। निश्चित तौर से जो कमियां हैं उनके बारे में रास्ता निकालने का वो प्रयास भी सार्थक संवाद है, उससे ही नई परेशानियों के लिए हल करने का रास्ता भी मिलेगा। मैं इस बहुमूल्य कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। पुनः असम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर जी, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको आयोजित किया, यहाँ के सारे अधिकारियों को। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, जिनका हमेशा एक सार्थक प्रयास, पॉजिटिव स्टेप के लिए सहयोग मिलता रहा है। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू CPA एक्टिंग चेयरपर्सन मिस्टर यान लीडल ग्रेंजर एंड अदर फॉरेन डिग्नेटरीज फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट्स। सभी यहाँ सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य विचार रखा है। उनके विचारों से बहुत सारी चीज़ें बेहतर निकली हैं, समझ बनी है, उस पर हम आगे चलेंगे हम सब मिलकर। उनके साथ ही उनके साथ आए उनके राज्यों के विधानमंडलों के अधिकारीगण, हमारे लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव और असम के सारे वो अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, जो निरंतर हम सबकी देख रेख में और कोई इतनी सुंदर व्यवस्था की, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अंत में माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, महामहिम राज्यपाल, आप सबको बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for sharing your insightful thoughts with us. I would now request Honorable Ian Little Granger, Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, to kindly share a few words. Your Excellency, Speaker Lok Sabha, Mr. Speaker Assam, Deputy Chairman, Deputy Speaker, Speakers, colleagues, friends, can I, on behalf of the CPA, first of all say Stephen, our Secretary-General, can't be here this morning. I'm sorry. But can I please say on behalf of the CPA International, it has been an enormous honour to be here in Assam over the last few days. First of all, to be able to do our first conference and be part of your 8th conference. Your Excellency, I don't think it could have been a better subject for India to have tackled than youth.
You are the largest democracy in the world. You have one of the youngest populations of young people in the world. And the debates yesterday afternoon, the ones I heard this morning, confirm what I think you all knew and I've certainly learned, that your aspirations as a nation and as a country are enormous. I think it's also important to know that India is highly respected around the world. Sometimes you can look in and forget that we're part of an organisation in the Commonwealth of 54 countries, 180 legislators, 17,500 parliamentarians, 2.4 billion people, of which India, of course, makes up a sizable amount. But that is the great beauty of the Commonwealth. It is a family. We don't seek to moralise. We don't seek to tell people what they can and can't do. We don't try and influence. What we try to do is work together as a family to learn best practice from each other. And my meetings with your speakers and with friends and colleagues the first minute have been incredibly productive. And I think that the great thing that I will take back is two things. First of all, as I've said, you are a remarkable country. Nobody in Britain has nothing but respect for India. Our histories are intertwined, whether we like it or not. They are. And there is that huge family feeling. But that goes across the world, as I've already said. And I hope, and I really do mean this, Mr. Speaker, that we see you, sir, in Canada in August. And I hope as many of you can come to the CPC in Halifax in Canada at the end of August. It would be wonderful to see a really large Indian contingent. Because that is the time we discuss as friends from across the world what you've discussed today. How do we better what we do? How do we learn from each other to do it better? And how do we persuade our parliaments to be able to do much more in the area of youth, in the area of education, training? So I said yesterday, I would love to see Indian children, youngsters, young adults, being able to go anywhere in the Commonwealth to learn from universities around the world. You're blessed here, you have so many universities. But the great opportunity of people is that you can now go around the world and go anywhere. Social media, something I'm not a great fan of, has made the world tiny. We can now communicate with any part of the world instantly. And you make friends that are very deep, much deeper than perhaps we could in our days. You met someone in another country, unless you wrote a letter, you lost contact. Now, those friendships build. And I would say to you also, I've had a very constructive meeting with you, Mr. Speaker, and we've discussed two ideas that I hope very soon we may be able to welcome the Speaker and many of you to London to come and talk to us about your experiences. And we will take that back, as I promised, Mr. Speaker, to my Speaker, and we will work up that, dare I say, visit, which we cannot wait to be able to do so. But in conclusion, Your Excellency, you told me quietly you were a professor of finance. No more important person can there be. Finance and the creation of that opportunity, sir, is the thing that makes us all what we are. You also let me know that you've been around every single part of India over many, many years, and you've held meetings every part. And maybe as politicians, that is our great strength. We encourage, we hopefully persuade, but we can influence. That is what politicians do. It doesn't matter if you're a speaker, a backbencher, opposition, government, or just somebody who is part of what we call our family of parliaments. That is what our great ability is. And can I last, please, thank you, Mr. Speaker of Assam, to you and your staff, sir, the staff here at the Legislative Assembly, and to everybody who's made this conference possible. And I'm very grateful to you, sir, and to the Speaker of the Bar for your incredible friendship and courtesy and kindness over the last 4 days. But I wish you all well. Thank you for allowing myself, Stephen, and our team from London to be part of your conference. It is a great privilege. And I look forward to seeing you either in Canada or in London or somewhere around this wonderful family that we call the Commonwealth. And until we meet again,
Thank you very much indeed, Your Excellency. Thank you, sir. May I now request Shri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha and Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association, India Region, to kindly share a few words with the distinguished gathering. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सीपीए की कार्य समिति के समापन समारोह में असम के राज्यपाल महामहिम माननीय जगदीश मुखी जी, सीपीए के एक्टिव चेयरपर्सन एक्सलेंसी हियान लिडल गेंगर जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत देमारी जी, सभी राज्यों से आए विधानसभा के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैनगण, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमान मोइन जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि असम की इस ऐतिहासिक धरती पर जो पावन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, उस गुवाहाटी शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 8वें सम्मेलन का समारोह हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कार्य समिति की मध्यवर्षीय बैठक जो भारत में पहली बार आयोजित हुई, इन दोनों सम्मेलनों के माध्यम से लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है और हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। इस सारे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने अतिथियों का सत्कार किया, इस सम्मेलन की उत्कृष्ट व्यवस्था की, मैं पूरी सभा की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ है, जो चर्चा संवाद हुई है, जो निष्कर्ष निकले हैं, वह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के लिए अत्यंत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होंगे। इसमें हमें ऐसे कदम उठाने में मदद मिलेगी जो इस सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। इस सम्मेलन में जिन माननीय पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए,
अच्छे सुझाव दिए, उनकी सक्रिय भागीदारी रही, उसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, ऐसे सम्मेलन हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में चर्चा संवाद से जो अनुभव, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हम साझा करते हैं, उसका सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लाभ मिलता है। इससे हमारा लोकतंत्र अधिक जवाबदेही, सहभागी और सार्थक बनने में इन चर्चाओं से मदद मिलती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस बार हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद किया, जिसमें समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य के लिए विधायकों की भूमिका। इस सम्मेलन में हमने व्यापक रूप से चर्चा की कि किस तरीके से हम आकांक्षी वर्गों की बेहतर भविष्य के लिए विधायिकाओं की भूमिकाओं हम अधिकतम चर्चा और संवाद इन आकांक्षी वर्गों के बारे में अपने अपने विधान मंडलों में करें, ताकि इन आकांक्षी वर्ग और आकांक्षी क्षेत्रों का विकास हो सके, उनका आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सके। इस प्रक्रिया के अंदर युवाओं की ऊर्जा और क्षमता किस तरीके से उपयोग हो, लोकतंत्र में उनकी किस तरीके से सक्रिय भागीदारी हो, किस प्रकार युवा केंद्रित नीतियों का निर्माण हो, इस विषय पर भी व्यापक चर्चा हुई। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने समाज में शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, युवाओं के मुद्दे, उस पर अलग अलग विधानसभाओं में किए जा रहे काम, सरकारों के किए काम, उस पर भी व्यापक चर्चा संवाद किया और अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं इन सम्मेलनों के चर्चा करने से, अपने अपने विचार व्यक्त करने से एक लोकतंत्र में एक दिशा मिलती है, और इसीलिए हम इन चर्चाओं के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वह अपने अपने क्षेत्र के आकांक्षी वर्ग, आकांक्षी क्षेत्र की समस्याओं को, कठिनाइयों को विधानसभाओं, विधान मंडलों के माध्यम से सरकार में ध्यान डालें, ताकि हम पूरे देश का एक सामूहिकता के साथ, समानता के साथ विकास कर सकें। हमारे जनप्रतिनिधि चर्चा करते समय इन वर्गों के लिए ठोस नीतियां बनाने के लिए चर्चा करेंगे और किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में उनके विचार भी व्यक्त करेंगे। हमारे विधान मंडलों में इस बात की हमने व्यापक चर्चा की कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर युवाओं की सक्रिय भागीदारी निभाएं, उनकी ऊर्जा का, उनकी क्षमता का किस तरीके से उपयोग करें, ताकि देश प्रदेश में व्यापक सकारात्मक बदलाव आ सके। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों की क्षमताओं को समझा है
उनकी ऊर्जाओं को समझाए। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि इस देश में अगर बदलाव लाना है तो हमारे इन नौजवानों की ऊर्जा, उनकी व्यापक क्षमता, उनके नवाचार, नवोवेशन और नई नई उनकी सोच, नजरिया इस देश में व्यापक बदलाव ला सकता है। और हमारे सभी पीठासीन अधिकारियों ने भी इसी दिशा के अंदर अपने सार्थक विचार व्यक्त किए हैं। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर इन युवाओं के माध्यम से नए भारत के भविष्य के निर्माण में उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी नई सोच, उनके नए इनोवेशन का सकारात्मक उपयोग करेंगे। और इसीलिए हमने इन विषयों पर 2 प्रस्ताव भी पारित करने का निर्णय किया है। और इन प्रस्ताव में विशेष रूप से युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय विकास और लोकहित के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग विषय हमने लिया था। और हमने निर्णय किया है कि भारत की संविधानता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम सभी विधानमंडल युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास, लोकहित और युवाओं की ऊर्जा का व्यापक उपयोग करेंगे। हम इसके माध्यम से अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से सरकार से चर्चा करके, स्वयं संस्थाओं से चर्चा करके, अन्य लोगों से चर्चा कर कर समाज के हर वर्ग को इस अमृत महोत्सव में, इस कार्यक्रमों में शामिल कर कर उनमें नई जागृति पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें ये विचार आता है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने इस देश की आजादी को दिलाने में अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। और 7 दशकों के अंदर जब जब भी देश और प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा दी तो उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रही। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस अमृत महोत्सव में उन युवाओं में ये प्रेरणा पैदा करें कि वह देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से समर्पण कर कर देश और प्रदेश के विकास में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग इस देश को लिए दे। ये हम सबका एक बातचीत में, चर्चा में एक निर्णय निकला है। मुझे आशा है हमारी नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरीके से हमारे कई साथियों ने अभी विचार व्यक्त किया, हमारे उपसभापति जी ने विचार व्यक्त किया कि किस तरीके से कठिन चुनौतियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर हर चुनौतियों का ठीक से समाधान निकालने का काम इस देश में युवाओं ने किया है। हमारे युवाओं के नवाचारों को हम अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की नवाचारों की ताकत, उनकी आईटी सेक्टर, अन्य उनका विज्ञान, तकनीकी तमाम क्षेत्रों की अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया में भी जो परिवर्तन हुए उसमें भारत के नौजवानों की भूमिका है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन तमाम युवाओं को हम समग्र रूप से उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करें। मुझे आशा है कि जो चर्चा और संवाद होंगे, जो निर्णय हमारे हुए हैं, उन निर्णयों से एक सारगर्भित और सार्थक परिणाम यहाँ पर निकलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से राज्य सरकारों से चर्चा करके अपने यहाँ के राज्य के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के साथ मिलकर
इस अमृत महोत्सव के माध्यम से एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि हम हमारे नौजवानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें और उन सब नौजवान राष्ट्र के में अपना योगदान दे सके और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए राष्ट्र को समर्पित करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। केवल हमारे आर्थिक सामाजिक नहीं, हमारे सांस्कृतिक और संस्कृति के रूप में हमारे युवा हमेशा अग्रदूत के रूप में रहें। इसलिए जहां आर्थिक परिवर्तन में भूमिका हो, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका हो, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में भी उनकी व्यापक भूमिका रहे, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज आइए हम सब मिलकर अपने अपने राज्यों में जो निर्णय हमने लिए, जो फैसले लिए, जो प्रस्ताव हमने पारित किए, उन प्रस्तावों को अमल में लाएं और इस देश में अमृत महोत्सव के माध्यम से एक नए सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भारत में पैदा करें, ताकि जब आजादी के 100 साल और शताब्दी के तो दुनिया के अंदर भारत आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बने। मैं यहाँ पर पधारे सभी पीठासीन अधिकारियों, सांसदों, विधायकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से असम विधानसभा और असम सरकार के सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक भव्य तरीके का आयोजन किया। मैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरीके का सार्थक काम किया उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। इस सम्मेलन में पधारने पर आपकी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा में जो गुवाहाटी इसका मेन सबसे द्वार है, वहाँ आपकी यात्रा सुखद रही होगी, सुंदर रही होगी और मुझे आशा है यहाँ की जो स्मृतियाँ आप लेकर जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में भी, जब इस तरीके के कार्यक्रम हो तो उसी तरीके का उत्कृष्ट आयोजन आप करेंगे, ताकि जो आयोजन यहाँ पर किया है उसके लिए मैं पुनः विधानसभा के अध्यक्ष जी को तालियां बजाकर आग्रह करूंगा कि उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। अंत में आप सबको यहाँ पर आने वाले समय में गुहाग बिहू की एक संस्कृति उत्सव होता है पूरे महीने भर, उस उत्सव की भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये प्रदेश एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बहुरंगी संस्कृति का प्रदेश है। मुझे आशा है भारत में यहाँ की बहुरंगी संस्कृति हमेशा एक नई दिशा देती रहेगी और यहाँ का सम्मेलन जो चर्चा और संवाद हुआ वह भी इस अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरे देश में एक नई दिशा देगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your thought-provoking speech, sir. Respected delegates, as we approach the conclusion of the event, I would request Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, to kindly deliver his valedictory address. नमस्कार। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मिस्टर इयान लिडल ग्रेंगर, ऑनरेबल एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी, श्री हरिवंश जी, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑनरेबल स्पीकर असम लेजिस्लेटिव असेंबली श्री विश्वजीत डायमरी जी, डिप्टी स्पीकर असम लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर नुमल मोमिन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ऑनरेबल members of
Parliament and honorable MLAs present over here. I consider it my proud privilege to attend this closing ceremony of 8th Commonwealth Parliamentary Association, India region, conference held in Guwahati and deliver the valedictory address. Commonwealth Parliamentary Association, a global platform with regional perspective, was started in the year 1911 with only 6 members. Today, it's the second largest platform for the World Parliament after the International Parliamentary Union, Geneva. I am told that Commonwealth Parliamentary Association's mission statement aims to promote knowledge of the constitutional, legislative, economic, social, and cultural aspects of parliamentary democracy with particular reference to the countries of Commonwealth. I hope the CPA is performing well to achieve the goals. I have further been told that for the first time, the Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee meeting was held in India, and that too in my state, Assam. It is indeed a very pleasant coincidence that 2 events, the Mid-Year Executive Committee meeting of CPA and 8th CPA Indian Region Conference are organized during the 85th Foundation Celebration Month of Assam Legislative Assembly. Assam Legislative Assembly had also hosted the 17th CPA India Region Zone 3 Conference at Guwahati in the year 2019. It is indeed a laudable achievement on the part of this constitutional epithet of our state. In the democratic setup of our country, Assam Legislative Assembly is one of the oldest assemblies of India. Legendary figures like Bharat Ratna, Lokpriya Gopinath Bordoloi, the first Chief Minister of Assam, and Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika once represented Assam Legislative Assembly. Since 1937 till date, during the last 85 years, Assam Legislative Assembly witnessed many historic debates and passing of several important legislations to bring about transformative changes in the lives of the people of a state. India today is a thriving and vibrant democracy and celebrating the 75th year of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Participation of institutions and people across the country in Azadi Ka Amrit Mahotsav is indeed a testimony of a sound and participatory democracy in India. You all know state assemblies are the platform to discuss the hopes and aspirations of the people and to guide the government in fulfilling such aims and aspirations. Being the cornerstone of federal structure of our country, the assemblies are to strengthen the federal and democratic edifice of the country. In a parliamentary system, the presiding officer holds the most important position within the 4 walls of the House. His authority is supreme. You all know that the institution of Speaker or the President of dates back to 1921, when the Central Legislative Assembly was constituted for the first time in India under the Mount Chelmsford reforms. From that point of view, we have already witnessed 100 years of the glorious existence of presiding officers. The Speaker is to function impartially and efficiently during his tenure of office, though he is elected from a party ticket. The Speaker does not take part in the deliberation of the House except in discharging of his duties as a presiding officer, yet the whole proceedings revolve around him. On this solemn occasion,
I deem it appropriate to request you all to lend your cooperation to strengthen the foundation of democracy and spread it to everywhere. I feel proud to state that our country is based on robust foundations of democracy, and it is one of the most vibrant running democracy in the world. It's time that CPA India region takes the nation to a brighter future for the next generations. It should also contribute to set the road to reach the world, to understand, to make relationship with the world. Let us contribute to international peace through mutual understanding and dialogues. In India, we are putting a lot of emphasis on youth power to make our democracy stronger. The number and the potential of youth in demographic dividend must be considered as a driving force. Therefore, CPA India region should involve more and more youth to take active part in the democratic process. I hope all of you have enjoyed your stay in Assam, the land of blue hills and red rivers. I congratulate the Speaker, Assam Legislative Assembly, for successfully holding two important events. I express my gratitude to the Commonwealth Parliamentary Association and Honorable Speaker Lok Sabha for allowing me to state to host these events. It's a time for Rangoli Bihu celebration in Assam. May I take this pleasure in wishing you all a happy Rangoli Bihu. Stay happy and stay blessed. With these words, I conclude my valedictory speech. Thank you. Jai Hind. Thank you for your words of wisdom, Honorable Sir. I would now request Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin, to propose the vote of thanks. Thank you very much. His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, Honorable Speaker Lok Sabha Sri Om Birla Ji, Honorable Chairman CPA Executive Committee Ian Little Grenier Ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Harivansh Ji, Honorable Speaker Assam Legislative Assembly Bishwajit Toimari Ji, Honorable Speakers and Deputy Speakers all across from India, Secretary General Lok Sabha, Rajya Sabha, Honorable Member of Parliaments, Lok Sabha and Rajya Sabha, Honorable Member of Legislative Assembly, Assam. First of all, I would like to convey my vote of thanks to His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, for his advice and this valedictory speech. Thank you so much, sir. मैं हृदय से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 5 दिन वो हम लोग के साथ रहा, वो पूरा मार्गदर्शन दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और सीपीए ये जो हम लोग का 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजनल कॉन्फ्रेंस, उसको सक्सेस होने के लिए पूरा उसका जो अवदान है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई वुड लाइक टू extend my thanks to Honorable Ian Little Grenier, Honorable MP and Acting Chairperson, CPA Exco,
and for his maiden CPA executive meeting in India. Thank you very much, sir. मैं हमारे राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो आके हम लोग को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और बहुत चीजें हम लोग को सीखने के लिए वो हम लोग को देकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिवंश जी। मैं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विश्वजीत दैमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसने जो हिम्मत किया असम में ये 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का इंडिया रीजन का ये कॉन्फ्रेंस निमंत्रित करने के लिए और उसके मेहनत के लिए हम लोग का ये कॉन्फ्रेंस आज इतना सक्सेस होके आज कंक्लूजन दिन में हम लोग आया है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा डांगरियाक धन्यवाद दिसु। तेखेते आही जी 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशनर आमाक मार्गदर्शन दिले, आमाक आशीर्वाद दिले, तार कारण तेखेतक धन्यवाद दिसु। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑल अक्रॉस इंडिया यहाँ पे आए, आप लोगों ने आप लोगों का विचार रखा, यहाँ पे बहुत अच्छा ये सेशन चला। सभी लोगों को मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आया और हम लोग का ये जो 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मीटिंग ये सक्सेस किया। मैं असम के विधायकगणों को, मंत्रीगणों को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग ने भी यहाँ पे पढ़ाए और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हम लोग को हेल्प किया। मैं धन्यवाद देता हूं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की और उसके साथ आए हुए जितने स्टाफ पार्लियामेंट के सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं CPA जो बाहर से आए हुए, those representative from CPA, they came here and they are with us and gave us their blessings. I thank you very much to all of you. मैं असम विधानसभा के सभी कर्मचारियों, ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी को धन्यवाद देता हूं। स्पेशली जो क्लीनर है, ड्राइवर है, उन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के मदद से हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। मैं जो कल्चरल ट्रूप्स यहाँ पे जो उन लोगों ने अतिथि गणों के सामने असम का कल्चरल जो ये है उसको प्रकट करने के लिए सक्षम हुआ, आप लोग के प्रदर्शन किए हैं, उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं रहा, मैंने भूला वक्त रह गया होगा, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अंत में मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आने वाले रंगोली बिहू के आप लोगों को सबको अभिनंदन देता हूँ। असम से आप लोगों को उलोक देता हूँ, रंगाली बिहुर उलोक जनाइसु। और आप लोगों का अगर समय हो तो आज 12 तारीख काल से शुरू होगा, 13-14 आप 2 दिन रह जाएंगे तो असम का रंगोली बिहू एंजॉय कर सकते हैं। ये निमंत्रण देते हुए मेरा ये वोट ऑफ थैंक्स मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। Thank you, sir. All honorable Live delegates may now telecast proceed for of the 2-day 8th India Region Conference of the Commonwealth Parliamentary Association being held at Assam Assembly Legislative Hall.
now take you back to the studios of Didi, Assam. The delegates from 22 states consisting of the presiding officers, like the Speaker. Now we take you back to the studios of Didi, Assam. Thank you so much.